इंडियन आर्मी ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मिलिटेंट को जो है मार गिराया। मैं आपको बताता चलूं कि शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के केरन सेक्टर से जो है ये खबर निकल के आई थी कि इंडियन आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच में जो है एक तसदुम हुआ, यानी ऑपरेशन एक स्टार्ट हुआ और उसके दौरान जो है 3 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया। तब मैं आपको बताता चलूँ जो है उसी के चलते जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है आज हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल मैं मौजूद हूँ पोताखन गली के पास और यहाँ से जो बिल्कुल आप देख सकते होंगे बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका जो है आपको नजर आ रहा होगा, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। और इसी के चलते जो है आज मैं बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से जो है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF के द्वारा जो है एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है, यानी जो दरअंदाजी की कोशिश थी उसको नाकाम बनाते हुए 3 जो फॉरेन टेररिस्ट यानी फॉरेन मिलिटेंट्स जो है उनको मार गिराया गया है। तो हम बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां से जो सामान जो उनका पकड़ा गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कैमरामैन अगर कोई पैन करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं जो कि खाने के सामान या अगर देख सकते हैं आप फॉरेन जो सिगरेट्स हैं या लाइटर्स हैं या फिर गोलियां आप देख सकते हैं, मैगजीन्स, पिस्टल्स और AK-47 जो है मैगजीन जो है मुझे जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 9 है और 4 पिस्टल इसमें है और पिस्टल के मैगजीन्स है और बाकी जो सामान यहाँ पे जो है वो इन्होंने जो है इसमें बरामद किया है। हम बिल्कुल मैं आपको बताता चलूंगा जिस तरीके से लगातार जो है इंडियन आर्मी या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार जो है इन दरअंदाजी की कोशिशों को जो है यहाँ पे नाकाम बना रही है और उसी के चलते जो है शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के केरन सेक्टर से जो है एक जो है ये दरअंदाजी की कोशिश है उसको नाकाम बनाते हुए 3 फॉरेन मिलिटेंट्स को जो है यहाँ पे मार गया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दी गई है वो आप देखिए। Intelligence inputs from various intelligence agencies with respect to presence of terrorists in multiple launch pads opposite the Keren sector of Kupwara district. The inputs were primarily of terrorists planning to infiltrate and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general and the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies and was further corroborated by the Jammu and Kashmir police regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Keren sector, leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas. Accordingly, multiple ambushes were jointly laid by Army, BSF and JKP since the night of 13th and 14th July on the appreciated routes of infiltration, and besides this we were maintaining surveillance of the complete area. Round the clock high alert was maintained by troops in the entire area. On 14th of July at approximately 1500 hours, a movement of 3 terrorists was spotted by own ambushes in the area under control of Pakistan Army across the line of control. Employing multiple high-tech surveillance devices, the movement of terrorists was continuously tracked. The terrorists, taking advantage of the thick foliage and poor visibility, sneaked across the line of control and started moving towards the fence. The ambush was there sprung at an opportune moment, and the terrorists were engaged with precise fire well ahead of the line of control fence. The terrorists were heavily armed, well trained, and equipped with sophisticated weaponry and equipment. In the ensuing intense firefight, 3 foreign terrorists were neutralized. A detailed search of the area was subsequently carried out, which led to the recovery of large quantity of warlike stores. Thus, the evil designs of the adversary to infiltrate terrorists across and was nipped in the bud. The Indian Army, along with the other security agencies, are committed to defeat the evil design of our adversary, and like in Operation Dhanush 2, every such attempt would be appropriately neutralized in an appropriate manner to ensure security, safety and everlasting peace in Jammu and Kashmir. Thank you. कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से
ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली सेक्टर के माध्यम से और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाए रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। जय हिंद।